In April 2019, XPHP embarked on a 4,000 kilometers journey on two TVS Apache RR310s, powered by Castrol Power One and Apollo tires, with the support of TVS Racing. The ride started from Booth International Circuit and ended at Sholavaram A Strip near Chennai. In between, we also visited the Kari Motor Speedway in Coimbatore and also MMRT racetrack in Chennai. During the ride, we also spoke to a lot of people from the racing fraternity. The idea behind this ride was to find the roots of the Indian motorsports and also what lies in the future for it. It was one of the longest days of our ride as we were riding from Nagpur to Hyderabad and started with a ride with bikers of Nagpur. We also had the company of Prutu Mehta who had come all the way from Hyderabad to Nagpur to ride back with us till Hyderabad. Hi, this is Prutu Mehta and I ride a Tiger XR with Deepak Gupta Extreme Motor Adventure. ये तो दीपक गुप्ता जी इनको दुनिया जानती है. इधर से स्टार्ट करते हैं. Hi, my name is Shoaib and I belong to Orange City Riders Group. I ride Pulsar 220. Hi, myself Nisar Manor Bilkhede. I belong to Orange City Riders Group and I ride FCS 15. Hi, I am myself Himanshu Barabatre. I belongs to OCR Group. I ride KTM RC 200. Hi, my name is Ashutosh Itankar. I ride NS 200. Hi, my name is Pallav Dhote and I am from OCR and I ride Duke 390. This is Akash Salve. I ride Bajaj Avenger 220 Cruise. I belong to Orange City Riders. Hi, I am Atish Kulsange. I ride Pulsar 200 NS and I am a solo rider. I am Ankit Madavi. I ride Royal Enfield 350 and I am from Nagpur. I am a solo rider. Okay. Myself Aniket and I am ride NS 200. Okay. Solo ride. Hi, I am Nitin Masi. I am from OCR Nagpur. I ride Dominat 400. हेलो, मेरा नाम शिजन फिलिप. मैं हॉर्नेट 160 चलाता हूँ एंड मैं ऑरेंज सिटी राइडर से ही हूँ. चल भाई. ओके भाई लोग, थैंक यू फॉर कमिंग. आराम से जाना. ठीक, बाय बाय. मिलते हैं फिर दोबारा कहीं हाईवे पे. चल, थैंक यू भाई. बहुत अच्छा लगा सर. हैदराबादी बिरयानी खाने का बोले तो दादा खिलाएंगे हैदराबादी बिरयानी रात के 12:30 बजे. तो भाई साहब, आज की जो एक्चुअल जर्नी है वो अब स्टार्ट हो चुकी है. हाँ, 470 किलोमीटर्स हमें जाना है और टाइम हो चुका है एग्जैक्टली 10:08. सो 130-140 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, वो भी सही स्पीड में. तो रोड्स बहुत ही शानदार है यहाँ के. गर्मी ने थोड़ी सी हालत डाउन कर रखी है. यहाँ पर रुके हैं और ये ठंडा वंडा चल रहा है. सुनील भाई एज यूजुअल लगे हुए हैं कर्ड खाने में. दही पेट खराब है. कल पकोड़े ज़्यादा खा लिए थे उन्होंने. This is day 4 of tracing the routes, and today we are going from Nagpur to Hyderabad. This is the first big day for us. We are riding about 500 kilometers, and as of now we have covered almost 150 or 160 kilometers already. And where we are right now is a very small town called Pandarkauda, and here we met two riders, two bikers who hosted us here at this dhaba. And so this is Rahul and Akin. तो राहुल, आप यहीं से हैं? हाँ, मैं यहीं से हूँ पांडर. आप थोड़ा जगह के बारे में बताएंगे? ये जगह है महाराष्ट्र की यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में आता है पांडरकौड़ा. यहाँ से 20 किलोमीटर के बाद में शुरू होता है तेलंगाना. और ये जगह खाने के हद तक की काफ़ी फेमस है. कॉटन, गोल वगैरह सभी के लिए काफ़ी फेमस है. और आप बाइक कौन सी चलाते हैं? मैं बाइक चलाता हूँ पल्सर 220. पल्सर 220. आज आप लॉन्ग राइड पे भी गए ना? हाँ, लॉन्ग राइड मैंने लास्ट ईयर 2017 में किया था लेह लद्दाख. अच्छा. और अभी रिसेंटली जनवरी में किया है मैंने 5 स्टेट, जिसमें मैंने 3700 किलोमीटर राइड किया है सोलो. अच्छा, वेरी नाइस. थैंक्स राहुल. थैंक यू सर. अखिन, आप विच बाइक डू यू राइड? मेरा तो स्प्लेंडर प्लस है. मैं बाइकिंग राइडिंग नहीं करता हूँ, लेकिन कम्युनिटी में ज्वाइन हूँ. अच्छा. तो शेयरिंग चलती रहती है. अच्छा, बट मैं देख रहा था आप फोटोग्राफ कर रहे थे, तो फोटोग्राफी में आपका इंटरेस्ट है? फोटोग्राफी टेक्निकली ज़्यादा शौक है. फोटोग्राफी एक पैशन है.
Nice. So these two gentlemen from this very small town, they are keeping the biking flame alive here in this small town, and it is because of these people like these that I see the future of Indian biking very bright. Thank you so much. Back on roads again. एक अच्छा खासा ब्रेक लिया 125 किलोमीटर पर नागपुर से। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि टेम्परेचर इतना है कि ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, हद से ज़्यादा गर्मी है और जो लू है, हीट स्ट्रोक, वो चल रहे हैं। टेम्परेचर मेरे ख्याल से होगा 40 से 45 के बीच। हाईवे बहुत ही गज़ब के बनाए हुए हैं यहाँ पर, बहुत ही गज़ब के। और यहाँ पर अगर आप देखें ग्रीनरी भी है, बैरन भी है, ऊपर से ये जो ऑरेंज कलर के पेड़ निकले हुए हैं, फूल निकले हुए हैं पेड़ों पर, क्या शानदार लग रहे हैं यार। मतलब कुछ तो डिफरेंट नज़र आया इतनी देर बाद। पंजाबी होटल गोट्रा फैमिली, ओहो। यहाँ पर इनको लोकली कहते हैं मक्का चिप्स। मक्का चिप्स कॉर्नफ्लेक्स का है, यहाँ फेमस है। लवली यार, ऐसा लग रहा है वो बोलते हैं ना मैक्रोनी टाइप, हल्का हल्का। हाँ, मस्त है। Due to the late start from Nagpur and long distance that we had to cover, we reached Hyderabad pretty late at night, and there was no time to explore. Good morning, guys. This is day 5 of tracing the routes, and right now we are in Hyderabad, just leaving the hotel for Bangalore. Yesterday was the longest day for us in terms of number of kilometers that we did. We did about 500 kilometers and from Nagpur to Hyderabad, and today we are going to do even more number of kilometers. So today we are going to do 565 kilometers from Hyderabad till Bangalore. The good thing is the roads are going to be good, and the bad thing is it's going to be even hotter, which has been the normal. So I think we should stop cribbing about the heat because this is the way it is. डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है तो पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, उस वजह से बार बार फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने पड़ते हैं, फ्लूइड्स लेने पड़ते हैं। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे। वैसे जो जर्नी अभी तक चल रही है रोज़ रात को ही पहुँच रहे हैं। The road between Hyderabad and Bengaluru was one long and boring highway, and we hardly took any breaks that day. And even in Bengaluru, we had only one overnight stay. And the next day, we continued our journey towards Madikeri with a friend who had also come to ride with us till some distance that day. भाई साहब, गंदे वाला जाम लगा हुआ है, गंदे वाला। पसीने ऐसे बह रहे हैं, हाय राम, क्या बताऊं। हैं? ओ भैंस की, अबे क्या हो गया, ये तो रोड रेज हो गई। हाँ हाँ, आगे जाता हूँ मैं। ये देखिए दोनों तरफ नारियल के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहाँ, और अभी थोड़ी देर पहले नारियल पिया, मज़ा आ गया था पीकर। 112 नहीं ज़्यादा रहेगा, 132 है। 112 नहीं, एक तो 112 था, एक का सो कुर्ग यहाँ से 132 किलोमीटर रह गया है और यहाँ पर रुके हम लंच के लिए। सुनील भाई ने साउथ इंडियन थाली मंगाई है। साउथ इंडिया में आके अगर साउथ इंडियन नहीं खाया तो, और नॉर्थ तो रोज़ ही खाते हैं। नॉर्थ तो रोज़ ही खाते हैं, लेकिन यार अपना क्या है कि नॉर्थ वाले बंदे हैं तो थोड़ा सा नॉर्थ पे ध्यान ज़्यादा रहता है। चलो यारिक भाई, चलो जी, बहुत अच्छा लगा मिल के यार। बिल्कुल सर, मेरा बहुत समय से मौका मिलने का, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाय।
सो एरिक वापसी यहाँ से जा रहे हैं, यहीं तक हमें छोड़ने आया था। काफ़ी दूर तक आ गया यार, और इतनी गर्मी में आना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। So guys, day 6 of tracing the routes, and finally we have beautiful state roads of Karnataka, and today we are going from Bangalore to Coorg, Madikeri in Coorg. The ride is beautiful so far, and look how's the weather right now. It is going to be raining, and we are not complaining about the rains. In fact, we will love the rains because we've been riding last 6 days have been extremely hot, so this is going to be a welcome change. The only thing that we have to worry about is waterproofing our equipment, all the electronics, camera, laptop, etc. We were bored of riding on these national highways, though the RR310 loved riding on these open and wide stretches of tarmac. And just a few kilometers from Bengaluru, we found these beautiful state roads of Karnataka, which was a welcome change. Good morning. So this is day 7 of tracing the routes, and today we are in actually 30 kilometers short of Madikeri. We are in this town called Kushal Nagar. Our bike is there. Hope you can see it, parked under that tree, and looking beautiful. That hint of red hidden in this huge cover of green, and here's a coffee. So this coffee is made in Coorg. As you all know, Coorg is famous for its coffee, and here I am enjoying my kappa. Life is good, friends. और ये आ गए दीपक भाई, ready okay? दीपक, ready to go? Yes, we are going to Coorg, then Uti. तो आज दिखेंगे टी स्टेट्स और नज़ारे काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। हाँ, well, all set for Coorg, and तो लीजिए बैठ गए हम अपनी बाइक पर, और टाइम हो चुका है 8:55। तो निकलते, चलो जी। हाँ, फाइनली आज 9 बजे निकल गए, कल निकले थे 10 बजे। हर रोज़ 10 ही बज जाते निकलते। कल नहीं, परसों तो खैर ठीक ठाक निकल गए थे हम, फिर भी लेट हो गए थे रात को पहुंचने में, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, 565। हाँ। Guys, we are at this place called Bailakuppe, which is near this town of Kushal Nagar, 30 kilometers from Madikeri in Coorg. What we have right now in front of us is this monastery. Apparently this is the biggest Tibetan monastery in India, and also the biggest Tibetan settlement in India. More Tibetan Buddhist monks live here than any other part of the country. But the thing is that we cannot go inside. The bikes are not allowed to go in, so we cannot go in, and we just have to turn back from here. And now we are going towards Madikeri.
जन्नत है जन्नत। अरे भैया क्या कर रहा है। ओहो इतने सारे हाथी खड़े हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 हाथी खड़े हैं, जिराफ है और पूरी की पूरी बटालियन है यहाँ तो। ओहो जानवरों की बटालियन। 9:39 हो चुके हैं और मदीकेरी यहाँ से रह गया है 14 किलोमीटर। तो थोड़ी देर में मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट में हम मदीकेरी पहुँच जाएंगे। देखते हैं कि वहाँ के नज़ारे कैसे हैं। तो आप देख रहे हैं इस टाइम मदीकेरी के नज़ारे। मदीकेरी ये एक राजा सीट पार्क है यहाँ पर, लेकिन अंदर तो बाइक जाएगा नहीं खैर। सो मदीकेरी हम पहुँच चुके हैं। ये है राजा सीट जो कि एक गार्डन है। मैं जा रहा हूँ अंदर की तरफ, देखते हैं कि टिकट लगेगी या क्या लगेगा। ये देखो ये है राजा सीट पार्क। काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पर। The target for us on this day was Ooty, but since it was getting dark and we had to cross Bandipur Tiger Reserve, which we were not allowed to cross after sunset, we decided to call it a day somewhere near the Tiger Reserve entry gate. चला जाए, यस चला जाए। तो आज है राइड का 7वां दिन। 7वां कल था 7वां और आज हो गए 8 दिन। 8वां दिन शुरू हो गया है। लेट्स मूव। जस्ट थोड़ी देर में अब हम बंदीपुर टाइगर रिजर्व पर पहुंच जाएंगे। वहां से एंट्री होगी फिर ऊटी के लिए। तो यहाँ पर बहुत तगड़ी आग लगी थी कुछ दिन पहले, करीबन मेरे ख्याल से 1-2 महीने हो गए हैं, और बहुत सारे जानवर, बेचारे जानवर उसमें मर भी गए थे। तो बहुत ही दुखद कहानी थी वो भी। बहुत ही ज़बरदस्त आग लगी थी यहाँ। तो देखा जाए तो गियर शिफ्टिंग RR310 की बहुत ही स्मूथ है। आराम से आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो एरोडायनामिक्स है इस बाइक के बहुत ही गज़ब के हैं। विंड ब्लास्ट आपको पता नहीं चलेगा अगर आप 130 भी जा रहे हैं आराम से। तो ऑल डे क्रूजिंग आप कर सकते हैं 120-130 ईज़िली। इंजन काफ़ी रिफाइंड है, स्मूथ है। टेरिटरी ऑफ तमिलनाडु, तो हम एंट्री करने वाले हैं तमिलनाडु में, कर ही गए ऑलमोस्ट। सो दिस इज़ मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, है ना। ओ भाई साहब कितना ग्रीन है ये यहाँ पर। लगता है कि बारिश हुई है अभी। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके कंफर्ट लेवल की तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप स्पोर्टी पोस्चर के आदी हैं
आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती, तो आराम से इसको लॉन्ग टूर्स पर लेके जा सकते हैं। मशीन बहुत ही उम्दा है, बहुत ही लाजवाब है। इंजन काफ़ी रिफाइंड और स्मूथ है। वाइब्रेशंस थोड़ी बहुत हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि आपको फ़ील हो, और आराम से ये जो बाइक है 120 ऑल डे क्रूज़ कर सकती है। जो टैंक है इसका वो है 11 लीटर का, और आराम से आप इस पर 225-230 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। Yes guys, you can say this is the one of the most beautiful machine in India and it cost you 2.5 lakhs। 2.5 लाख के अंदर ये जो मशीन है बहुत ही गज़ब की है। लुक वाइज इसका कोई मुकाबला नहीं है।